Good morning, children. Today we will go through the fourth chapter of your English literature book, Going Solo. This extract is taken from Roald Dahl's autobiography. Who was Roald Dahl? He was a British writer and also a fighter pilot, and he served in the RAF, that is Royal Air Force, during the Second World War. And in this story we will come to know what he liked doing and why did he like doing those things. He was a fighter pilot. He liked to fly different types of aeroplanes. In this extract we will come to know about the Tiger Moth aeroplane, which is a special type of aeroplane which is used to do different types of tasks. It is a sports aeroplane, as we have different types of bikes, sports bikes, which can perform different tasks. In the same way we have different types of aeroplanes. Let us start with the chapter, and you take your pencil and mark the difficult words. At the aerodrome we had 3 instructors and 3 planes. The instructors were civil airline pilots borrowed by the RAF from a small domestic company called Wilson Airways. The scene takes place in an aerodrome. There are 3 instructors. वहाँ 3 instructors हैं, 3 planes हैं, जिन वो इंस्ट्रक्टर्स को RAF ने, रॉयल एयर फोर्स ने स्टेट से बोरो किया है, उसे हायर किया है एक डोमेस्टिक कंपनी से जिसका नाम है विल्सन एयरवेज. द प्लेन्स वर टाइगर मॉथ्स, और वो स्पेशल प्लेन्स का नाम टाइगर मॉथ्स है. वो टाइगर मॉथ उन्हें कहते हैं. द टाइगर मॉथ इज और वॉज अ थिंग ऑफ great beauty. Everyone who has ever flown a tiger moth has fallen in love with it. कहा गया है कि वो एक स्पेशल टाइप का प्लेन है, और जिसने भी उस प्लेन को उड़ाया है कभी भी, वो उससे प्यार कर बैठा है. प्यार कर बैठा है का मतलब है कि उसे बहुत ही आनंद आया है उस प्लेन को उड़ाने में. Why? It is totally efficient and very acrobatic, like plane powered by a gypsy engine. And as my instructor told me, a gypsy engine has never been known to fail in mid-air. जो उनका इंस्ट्रक्टर है वो बताता है कि ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्लेन है, बहुत ही इसमें बहुत ही एफिशिएंसी है काम करने की. इसमें हम एक्रोबैटिक यानी कि उसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं. बहुत सारे इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस कर सकते हैं. और इसमें जिप्सी इंजन लगा हुआ है जो कि एक स्पेशल टाइप का इंजन है जो कभी भी आपको उड़ान भरते समय या उड़ान के बीच में कभी भी वो फेल नहीं हो सकता. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंजन. यू कुड थ्रो अ टाइगर मॉथ अबाउट ऑल ओवर द एयर एंड नथिंग एवर ब्रोक. You could glide it upside down, hanging in your straps for minutes on end, and although the engine cut out when you did that because the carburetor was also upside down, the motor started again at once when you turned her the right way up again. बोला जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम उससे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग उसको अपसाइड डाउन करते हैं, तो वो जो टाइगर मॉथ है उसका जो कार्ब्यूरेटर है, जो एक इंजन का जो कार्ब्यूरेटर है, जो इंजन का पार्ट है, वो भी अपसाइड डाउन हो जाता है. इसलिए वो 2 सेकेंड के लिए, जितनी देर वो अपसाइड डाउन है उतनी देर के लिए उसका इंजन रुक सकता है, मोटर रुक सकती है. लेकिन जैसे ही वो वापस टर्न करता है उसका इंजन अपने आप मोटर स्टार्ट हो जाती है. सो in this paragraph you take the words aerodrome, instructors, acrobatic, efficient, carburetor. And in the next paragraph, you could spin her vertically downwards for thousands of feet, and then all she needed was a touch on the rudder, a bit of throttle, and the stick pushed forward and out she came in a couple of flips. इसमें बोला गया है कि जब हम उससे एक्रोबैटिक ऑपरेशंस करते हैं, जब उसको बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ फीट हम उसे नीचे की तरफ मोड़ देते हैं, तो उसको वापस ऊपर करने के लिए सिर्फ उसके स्टीयरिंग पे, रडर पे एक हल्का सा हाथ रखना है, उसको प्रेस करना है, और क्या होगा, वो फ्लिप्स करता हुआ, घूमता हुआ वो वापस ऊपर की तरफ उठने लगेगा. उसके फ्यूल फ्लो ऑफ द फ्यूल को कंट्रोल करते हुए कि कितना फ्यूल उसको चाहिए, उस उतने डायरेक्शन में उसको टर्न करके हम उसको वापस ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं. यू टिक द वर्ड्स रडर एंड थ्रॉटल. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन फ्लाइंग अ मिलिट्री एरोप्लेन यू सिट on your parachute, which adds another 6 inches to your height. When I got into the open
cockpit of a tiger moth for the first time and sat down on my parachute, my entire head stuck up in the open air. The engine was running and I was getting a rush of wind full in the face from the slipstream. लिखा हुआ है कि जब मिलिट्री एरोप्लेन में हम लोग बैठते हैं तो क्या होता है, नीचे हम लोग एक पैराशूट रख लेते हैं अपने सीट के नीचे और फिर उसके ऊपर बैठते हैं. पैराशूट क्या होता है? इट इज़ एन रेस्क्यू इक्विपमेंट. अगर बाई चांस कभी एरोप्लेन क्रैश होने वाला हो या कुछ, तो कुछ इमरजेंसी हो तो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं उसको यूज़ करके. तो जब हम उस पर बैठते हैं तो हमारी हाइट 6 इंचेस ऊपर बढ़ जाती है. जब फर्स्ट टाइम जो नरेटर है रोल्ड डाल, वो इसके कॉकपिट में बैठा, कॉकपिट यानी कि जहाँ पे पायलट बैठता है वो एरिया, वहाँ जब वो बैठा तो वो बिल्कुल कॉकपिट से उसका सर ऊपर चला गया क्योंकि उसकी हाइट भी ज़्यादा थी और वो एरोप्लेन का साइज़ थोड़ा कॉकपिट का साइज़ छोटा था. तो क्या होता है कि उसको वो ऊपर की तरफ, और जो पीछे से हवा आ रही होती है जब कोई व्हीकल चलता है तो वो हवा उसके ऊपर बहुत तेज़ उसके फेस के ऊपर लग रही होती. ही वॉज गेटिंग अ रश ऑफ विंड फुल इन द स्ट्रीम फेस फ्रॉम द स्लिप स्ट्रीम. You mark the words parachute, cockpit and slipstream. You are too tall. The instructor, whose name was Flying Officer Parkinson, said, "Are you sure you want to do this?" तो जो उसका फ्लाइट ऑफिसर होता है, जो उसको इंस्ट्रक्टर होता है, जो उसको बता रहा होता है उसके बारे में, टाइगर मॉथ के बारे में, वो उसको कहता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप जब फ्लाई करेंगे तो आपको पीछे की हवा बहुत तेज़ लगेगी, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है. क्या आप इसे उड़ाना पसंद करेंगे? देन व्हाट डज ही से? येस प्लीज़ आई सेड. वो कहता है कि हाँ, मुझे ये प्लेन उड़ाना है. वेट टिल वी रेव हर अप फॉर टेक ऑफ, पार्किंसन सेड. यू विल हैव अ जॉब टू ब्रीथ एंड कीप दोज गॉगल्स डाउन ऑन, यू विल बी ब्लाइंडेड बाय वाटरिंग आइज. वो उनको क्या एडवाइस करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए इसका आप ध्यान रखें और अपने गॉगल्स को उतार लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी आंखों में पानी आने लगेगा जिससे कि आपको सामने वाली चीज़ साफ दिखेगी नहीं. और यहाँ लिखा हुआ है वेट टिल वी रेवर अप. हर, यहाँ पे हर किसके लिए यूज़ किया गया? टाइगर मॉथ को रेफ़र किया गया है. और रेवर अप मतलब उसको हम जब रेडी करते हैं तब तक आप वेट करिए और फिर आप उस पर फ्लाई कर सकते हैं. Parkinson was right. On the first flight, I was almost asphyxiated by the slipstream and survived only by ducking down into the cockpit for deep breaths every few seconds. After that, I tied a thin cotton scarf around my nose and mouth, and this made breathing possible. तो जब वो अपनी फ्लाइंग शुरू करते हैं रोल्ड डाल, वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल ये उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने ठीक एडवाइस की थी, उन्होंने ठीक बात बोली थी कि मुझे ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि कॉकपिट से उनका फेस बाहर निकला हुआ था और बहुत तेज़ हवा उनके फेस पे लग रही थी. और जब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी तो वो कॉकपिट के अंदर चले जाते थे हर सेकंड कुछ सेकंड्स के बाद, और उसके बाद सांस फ्रेश एयर लेकर और उसके बाद फिर वो वापस ऊपर उठते थे. और इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पतला रुमाल अपने नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर बांध लिया ताकि उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो. यू मार्क द वर्ड asphyxiated, ducking and cockpit. In the next page we will deal in the next class. For today this is enough. You go through this portion and then in the next class we will discuss the rest of the chapter. Thank you.